Hello. Good evening and welcome to your day 27. Good evening. 27वां दिन पहुंच गए हम and it is such a pleasure, you know, being on this journey of gratitude, and we have been learning so many ways to inculcate this habit of gratitude in our day-to-day life. And कल का चैप्टर जो था उसमें हमने क्या सीखना था कि हम जो भी चीज हमारी जिंदगी में बार बार हो रही है, कोई मिस्टेक, कोई कोई ऐसा इंसिडेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, एंड वी आर नॉट लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, एंड टिल दैट टाइम वी लर्न इट विल कीप हैपनिंग अगेन एंड अगेन इन आवर लाइफ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हर बार सीवियर होते जाएंगे, और जब बहुत ज्यादा सीवियर हो जाएंगे तो हम वहां जाके कुछ सीखेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम अभी से सीखना शुरू कर दें, बिकॉज हमें ये बात समझ आ गई है कि अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। एंड द बुक ऑल्सो टॉट अस हाउ टू कन्वर्ट दैट मिस्टेक इनटू ब्लेसिंग्स, and we were supposed to look for 10 gratitude in that mistake, answering those two questions, that what did we learn from it and what good came out of it. इन दो क्वेश्चंस के आंसर देते हुए हमें 10 ग्रैटिट्यूड उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ढूंढने थे, और बुक ने हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था ऑफ अ स्पीडिंग कार एंड द ट्रैफिक पुलिस, and how that person looked for 10 gratitudes in that situation. And the first and the foremost is to take the responsibility, to own it up, rather than playing a blame game. अगर हम blame game खेलते रहेंगे तो हम कभी भी सीखेंगे नहीं उससे। जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस चीज की, when we own it up, that is the time we will start looking for it. What is it there for me to learn from this? So these were the things we learned from yesterday's chapter. So today's chapter is one of the beautiful chapters. And why is it here? We will just learn about it. So let me just share the book. So today's chapter is about self. It says about the magic mirror. और मिरर में हमें क्या दिखता है? अपना रिफ्लेक्शन, है ना? The most neglected person in our life. Do you agree with me? We ourselves is the most neglected person. We will think about everybody else in our life, our family, our professional life, our friends, relatives, but our own self. So today's chapter is going to talk about how to be grateful for your own self to bring riches and abundance in our own life. So please start reading. Day 27. The Magic Mirror. The appearance of things changes according to the emotions, and thus we see magic and beauty in them, while the magic and beauty are really in ourselves. Khalil Gibran, 1883-1931, poet and artist. हम हमेशा कहते हैं ना, that beauty lies in the eyes of the beholder. अब ये कह रहे हैं कि इमोशंस के साथ हमें हमें जो दिखता है वो चेंज होता रहता है. Now look at Yes. a person. There's there's a man in the family. Yeah, there's a man in the family. Now a mother will look at him with different emotions. उसके लिए वो मेरा प्यारा पुत्र बेचारा कितना थक गया काम तो आके, है ना? She will think like that. Now it's the same guy, wife, you know, to the wife, if she's also working, she will say, I have also come from work, मैं भी थक के आई हूं, so why do you expect कि मैं उठ के चाय बना के लाऊंगी?
Why can't once in a while you make a tea? सो बंदा वही है, इमोशंस चेंज हो गए. नाउ देयर इज अ चाइल्ड इन द हाउस, वो उसके लिए वो उसका फादर है एंड उसको बहुत लाड आ रहा है. वो भागता हुआ आता है और अपने पापा की टांगों से चिपट जाता है, बोलता है पापा पापा पापा. अब द पर्सन इज सेम बट द इमोशंस आर डिफरेंट, और हर एक को वो बंदा अलग तरीके से नजर आता है. यस और नो? सो सिमिलरली, whenever we are looking at something, it's the emotions which shows us. अगर किसी को किसी से प्यार है, वो जितनी मर्जी मतलब बदसूरत हो, सांवली हो, जैसी भी हो, उसके लिए वो सबसे खूबसूरत है. सिमिलरली इन अ मैन, इफ अ गर्ल इज इन लव विद अ गाय, उसकी हाइट कम है, ज्यादा है, मुछ रखी है, नहीं रखी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके लिए ही इज द मोस्ट हैंडसम गाय. वो उसी के सपने देखती है. अगर कोई बच्चा किसी स्लम्स में रहता है, उसकी नाक बह रही है, आधे कपड़े पहने हुए हैं, और वो सड़क पे भाग रहा है, मिट्टी में गिर गया, और उसकी माँ आके उसको चिपका लेती है अपने गले से, कहती है हाय मेरा बेटा कितना सुंदर है. उसको अपना बेटा सबसे सुंदर लगता है, जो बेशक मिट्टी से सना हुआ है, बेशक उस नाक बह रही है उसकी, पर उसको वो अपना सबसे प्यारा लगता है बिकॉज ऑफ द इमोशंस. So, this book and this particular chapter is going to talk about how do you view your own self. क्या इमोशंस आते हैं आपके जब आप अपने आप को देखते हो? हाँ जी, पढ़े. You can spend the rest of your life running around trying to beat the outside world into the shape you want, chasing one problem after another, trying to fix them, complaining about situations or other people, and never succeed in living your life to the fullest and realizing all your dreams. ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है यार वो कितनी पतली है, मेरा तो ना ये जो मिडरिफ है ना, ये इसका तो जाता ही नहीं है फैट. हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं ना, हम अपनी खुद की बुराई कर रहे हैं. मेरे तो बाल ही नहीं बढ़ रहे, कितना कुछ कर लिया मैंने, ये तो बढ़ते ही नहीं है. सो आउटसाइड में, टू लुक बेटर, यू नो, इन कंपैरिजन टू अदर्स, वी आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स. हम अपने सिर्फ बॉडी को ही नहीं क्रिटिसाइज करते, अपने पैसे को क्रिटिसाइज करते हैं, अपने घर को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी गाड़ी को क्रिटिसाइज करते हैं. सो वी आर ऑलवेज एक्चुअली ट्राइंग टू बी वन अप कंपेयर टू अदर्स. एंड उसमें क्या होता है, क्या हमें हमारे सपनों की दुनिया मिलती है? नहीं मिलती, बिकॉज वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग our own self, our own circumstances, our own situations. And that is why we have the kind of life we have right now. Hanji. But when you make the magic of gratitude your way of life, everything in the world around you magically changes. Just like that. Your world magically changes because you changed, so what you are attracting changed too. या सो जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करते हो, ग्रेटिट्यूड को अ वे ऑफ लाइफ बनाते हो, everything around you starts changing. And I'm sure you, since you have been practicing it, आपको भी चेंजेस अपने आसपास नजर आ रहे हैं. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको चेंजेस नजर आ रहे होंगे अपने आसपास भी. Because the moment you start changing, you are changing inside. Because you're paying gratitude. And gratitude कैसे पे कर रहे हो? फीलिंग्स के साथ, विच इज इनसाइड, जो हमारे दिल पे है. फीलिंग्स दिल से आती है ना, तो इनसाइड ऑफ यू, व्हेन यू आर चेंजिंग, you are paying gratitude with feelings, things outside in the world, आपकी दुनिया में, बाहरी दुनिया में चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं. हाँ जी. In the inspirational words of Gandhi and in the lyrics of Michael Jackson's song Man in the Mirror, which impacted hundreds of millions,
one of the most powerful messages of all time was delivered. ओके तो ये मैन इन द मिरर किस किस ने सुना हुआ है? और मैं पुराने अपने जितने भी प्रोग्राम्स हुए थे मैं सब में ये शेयर भी करती थी. सो माइकल जैक्सन का एक गाना है अबाउट मैन इन द मिरर. और गांधी जी ने भी क्या कहा था कि आप जो दुनिया में चेंज देखना चाहते हो वो खुद बन जाओ तो सब कुछ बदल जाता है आपके आसपास. तो दिस सॉन्ग ऑल्सो इज टॉकिंग अबाउट द मैन इन द मिरर. इफ द मैन इन द मिरर चेंजेस, everything else changes in the world. Yeah. So this book is going to talk about, this particular chapter is going to talk about, if you change from inside, if you change yourself, everything around you will start changing for better, changing for bringing your dream life to you. Haji. Change the person in the mirror, and your world will change. Yes. Yeah. If you have followed the 26 magical practices to this point, you have changed. And even though it is sometimes hard to see the changes in yourself, you will have felt the change in your happiness, and you will have seen the change of improved circumstances in your life and the magical changes in the world around you. या तो अभी जैसे हम 26 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 26 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप इतने सक्षम तो हो गए हैं कि आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर करके आपके आसपास चीजें बदलनी शुरू हो गई हैं. सबसे पहले तो आप बदल गए हो. शायद आपको एहसास ना हो रहा हो कि आप बदले हो, बट you would have felt happier, you would have felt lighter, स्ट्रेस कम हुआ होगा, एंजाइटी कम हुई होगी, आपका गुनगुनाने का मन करता होगा, आपको कभी कभी लगता होगा जैसे पैरों में आपके जैसे हवा, आपके पैरों में जैसे ना पंख लग गए हैं. You feel lighter, like yes, like today morning when I went for walk and I was walking back, तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं ना जैसे मैं कभी कभी करती हूँ, बहुत टाइम से नहीं कर रही थी. आई स्टार्ट हमिंग एंड आई जैसे ना कहते हैं ना टांग कैसे बताऊं, वो किक करते हुए चलते हो आप, बचपन में जैसे चलते थे. सो आई वॉज डूइंग दैट. सो दैट इज अ साइन दैट आई एम फीलिंग लाइटर. अदरवाइज तो स्ट्रेस, टेंशन, इन सब बोझ से दबा होता है इंसान, तो ये सब मतलब सपने में भी नहीं आता दिमाग में कि मैं कुछ गाना गुनगुना लूं, या मैं आई वॉक लाइक आई यूज्ड टू वॉक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, या कुछ भी ऐसा करने का मन नहीं करता है. बट it's because of the practice we have been doing for last 26 days, things have started changing in our life. And if you start paying attention, you would realize it, that you are happier, you are feeling lighter, and things around you have suddenly started feeling much better. You have practiced the magical power of gratitude for your family and friends, for your work, money, and health, for your dreams, and even for the people you come across each day. But the person who deserves your gratitude more than anyone else is you. हाँ, तो अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिसेस किए हैं उसमें हमने क्या किया? उसमें हमने हेल्थ के ऊपर काम किया, हमने अपने रिश्तों के ऊपर काम किया, हमने अपने काम के लोगों के लिए काम उसके ऊपर हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की, हमने जो लोग हमें सर्व करते हैं उनके ऊपर हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की, है ना. हमने जो जो लोग जिन लोगों का हम भला करना चाहते हैं हम उनके लिए हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की. ये सब करते 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 हमने आज तक अपने लिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस नहीं की. अपने लिए मीन्स फॉर योर ओन सेल्फ. सिचुएशंस के लिए की है, लोगों के लिए की है आसपास, बट यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. पर हम अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं, हम तो प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं आते ही नहीं है. अगर हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं तो हम अपना नाम लिखना भूल जाते हैं कि हम भी प्रायोरिटी हैं. बट देखा जाए तो जैसे मैं कहती हूँ ना, आप अपने आई यूज्ड टू शेयर दिस अर्लियर आल्सो, दैट आप अपने वर्ल्ड का सेंटर हो. जैसे हम गोविंद कहते हैं ना, हम गोविंद कहते हैं भगवान को,
क्योंकि गो मीन्स सर्कल एंड बिंद मतलब बिंदु, जो बीच में सेंटर है उसका। सारा सर्कल किसके आसपास घूम रहा है? वो सेंटर के। आप जब कंपास से ड्रॉ करते हो सर्कल, तो बीच में रखते हो ना कंपास, एंड देन यू ड्रॉ द सर्कल, बिकॉज दैट सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपकी लाइफ के गोविंद जो हो वो आप हो। यू आर द सेंटर ऑफ योर वर्ल्ड। बाकी सारा जो वर्ल्ड है ना आपका, आपका आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके ससुराल वाले, आपके बच्चे, आपके समधी, आपका काम, इस सब जो जितना ये दुनिया है ना आपकी, यही है ना हमारी दुनिया। फ्रेंड सर्कल, नेबर्स, वो सब किसके हैं? आपके हैं ना। अगर आप नहीं हो तो ये सब हैं क्या? नहीं है। दे एग्जिस्ट बिकॉज यू एग्जिस्ट। आपका समधी, आपका बच्चा, आपका पति, आपकी सास, आप हो सेंटर में। पर हम तो अपने आप को सेंटर में कभी रखते ही नहीं है। हम तो है ही नहीं कहीं, पेरिफेरी में भी नहीं है कहीं पे। So this book is telling you that you are the most important person and don't forget your own self. हाँ जी, पढ़े। When you are grateful to be the person in the mirror, feelings of dissatisfaction, discontentment, disappointment, or I am not good enough completely disappear. And with them, every dissatisfying, discontenting, and disappointing circumstances in your life magically disappears too. ओके, सो आप में से आई डोंट नो कितने लोगों ने मैजिक मिरर की प्रैक्टिस कभी की है। अगर आप मिरर की प्रैक्टिस करोगे ना, तो मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो, तो हम क्या देखते हैं? फ्लॉज। आज तो बड़े डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, है ना। आज तो देखिए एक और पता नहीं पिंपल कहाँ से निकल आया, है ना। ये मेरे ना थोड़ा सा ना मेरे सन टैन हो गया, या ब्लेमिशेस हो रहे हैं। हम लोग यही सब देखते हैं। बट व्हेन यू आर सपोज टू सी इन द मिरर, यू आर नॉट सपोज टू सी ऑल दिस। यू आर सपोज टू सी इनटू योर ओन आईज। आपने अपनी आंखों में देखना है। जब आप अपने किसी फ्रेंड से मिलते हो, आपका कोई अगर फ्रेंड है जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो कभी आपने जब उससे फ्रेंडशिप की थी, तो क्या आपने देखा था उसका स्टेटस क्या है, कौन से बैकग्राउंड से है, कपड़े कैसे पहनता है, शक्ल कैसी लगती है उसकी, स्मार्ट है कि नहीं है? तो वो दोस्त है तो है। क्यों है? बिकॉज दिल से दिल मिला है। एंड यू डोंट लुक एट ऑल दोज थिंग्स, बट व्हेन वी लुक एट आवर ओन सेल्फ, वी लुक फॉर फ्लॉज इन आवर सेल्फ। वी लुक फॉर फ्लॉज इन आवरसेल्व्स। अगर हम फोटो देखते हैं अपनी मिरर में, अपने आप को देखते कहते यार मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, मेरे पास तो गहने भी नहीं, देखा उसने कितना सुंदर हार पहना था, मेरे गले में होता तो कितना अच्छा लगता। सो वी आर एक्चुअली ऑलवेज लुकिंग फॉर थिंग्स विच आर नॉट देयर, बट वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग द पर्सन इन द मिरर। कभी अपनी आंखों में आंखें डाल के बोला, यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तूने पूरा जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ सहा है और क्या कुछ अचीव किया है। हमें तो यही लगता है वी आर नॉट गुड इनफ, हमने तो कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। प्रीति से पूछ लो, अभी अभी कहेगी क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। मैं मेरे से पूछोगे तो मैं भी यही बोलूंगी, यार डिडंट डू मच इन लाइफ। कमल से पूछोगे वो भी बोलेगी, रंजीत से बोलो ये भी वही वही ये बोलेगी। हमारा नहीं, ये हमारा स्टैंडर्ड डायलॉग होता है, आई एम नॉट गुड इनफ। इसी का कोई वर्जन चल रहा होता है। अरे भाई जागो, तुम आज जहां पहुंचे हो, क्या कुछ सब मतलब क्या कुछ सफर करके यहां पहुंचे हो। what all odds you have overcome. So start appreciating yourself, start acknowledging yourself. So this book is teaching you, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से दोस्ती करो। दोस्ती तो करो यार, प्यार बाद में करना, पहले दोस्ती तो करो। लुक इन टू योर ओन आईज एवरी डे। सुबह ब्रश करते हो ना, उस टाइम देखा करो अपनी आंखों में, और अपने आप से बात किया करो। हाँ जी, पढ़ें। Negative feelings about yourself cause the greatest damage to your life because they are more powerful than any feelings you have about anything
or anyone else. ओके, तो मैं ना अभी कल रोंडा की एक शॉर्ट वीडियो देख रही थी। तो रोंडा की बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स आते रहते हैं। तो उसमें किसी ने एक ने पूछा, ऐसा क्यों होता है कि हमारी नेगेटिव फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और पॉजिटिव इतनी नहीं होती हैं? क्योंकि हम नेगेटिव फीलिंग जब फील करते हैं तो बहुत गहराई से फील करते हैं। हमें डर भी लग रहा होता है तो बहुत जोर से अंदर से, बहुत गहराई से होता है। when we worry about something we worry about also with lot of depth। वो बहुत गहराई से होता है। इसीलिए हमारी नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम ऐसी ही चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। नाउ व्हेन यू हैविंग अ क्रिटिसाइजिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर ओन सेल्फ, अभी क्या है कि अगर आप किसी इंसान को मिलते हो, आपने उसको 2 मिनट के लिए देखा, आपने उसको जज किया और बोला यार क्या है यार, क्या इसको बात करनी नहीं आती है, इतने फॉलोअर्स बना रखे हैं, बात देखो कैसे करती है या करता है। आपने 2 मिनट के लिए उसका जो कुछ भी देखा और आपने ये बात बोली, उसके बाद आप अपने काम में लगे, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, यू नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, इट्स कम एंड गॉन। But when it comes to your own self, you're carrying it all the time with your own self। आपके अपने बारे में जो फीलिंग है ना, वो आप हर टाइम साथ लेके चलते हो, एंड दैट इज वेरी डैमेजिंग। दैट इज लाइक, कहते हैं ना, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात। सो यू आर sabotaging your own life by having negative thoughts about your own self, because you are always carrying it with you, and बहुत डीपली महसूस करके बोलते हो उसको, चाहे मन में बोलते हो पर बोलते हो। हाँ जी, पढ़े। Wherever you go and whatever you do, you take those negative feelings with you in every moment, and those feelings taint everything you touch, and they act as magnet, attracting more dissatisfaction, discontentment, and disappointment with everything you do. अगर आपको ये लगता है कि मेरी जिंदगी में तो सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं है, पता नहीं क्या किस्मत लेके आई हूँ, तो आपने क्या बोला, क्या किस्मत लेके आई हूँ, एंड यू आर हैविंग अ नेगेटिव थॉट अबाउट योर ओन सेल्फ। नाउ दिस विल इम्पैक्ट ऑल अदर थिंग्स इन योर लाइफ। कुछ भी आपकी जिंदगी में होने वाला होगा तो ये वहां पे नेगेटिव फीलिंग आपको नेगेटिविटी ही लाके देगी, और आपकी जिंदगी में और ऐसी चीजें आएंगी जिससे आप यही बात बोलोगे कि मेरे तो किस्मत खराब है, कैसी किस्मत लेके आई हूं मैं। इसीलिए बोलती हूँ, बोलने से पहले सोचा करो क्या बोलने लगे हो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट विल गेट मैनिफेस्टेड। क्योंकि जो भी अंदर से गहराई से आएगा वो फटाफट मैनिफेस्ट होगा। हाँ जी। When you are grateful to be you, you will only attract circumstances that make you feel even better about yourself. You have to be rich with good feelings about yourself to bring the riches of life to you. Gratitude for yourself enriches you. हाँ, तो अभी जितना आप ग्रेटिट्यूड अपने लिए करोगे ना, इट विल ब्रिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ। आई मीन आई रिमेम्बर, दो साल पहले की बात है, आई हैड लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, एंड मैं मिरर के सामने खड़ी होके बोलती थी, आई हैव अ ग्लोइंग स्किन ऑफ 35 years ओल्ड। एंड मैं मिरर के सामने खड़ी होके बोलती थी, परी हूं मैं, परी हूं मैं। अब बस जितनी बार मिरर के सामने खड़ी होती थी मैं ऐसे ही करती थी, एंड यू वोंट बिलीव इट, उस टाइम पे मुझे बहुत लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, यार यू लुक सो यंग, क्या करती है तू अपने स्किन के लिए, हाउस योर स्किन इज लुक सो यूथफुल एंड सो ग्लोइंग। एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग, कल परसों याद करी थी, मैंने कहा ये परी हूं मैं, मुझे शुरू करना पड़ेगा फिर से। एंड दैट इज ट्रू। आई मीन लुक एट अनिल कपूर यार, Yep. एवरी टाइम एवरीबडी सेज कि वो किसी भी शूटिंग पे हो, कहीं पे भी हो, जहां पर भी कुछ उसको दिखता है ना, जहां पे रिफ्लेक्शन दिख सकती है, वो वहां खड़ा होगा, अपने बालों पे हाथ करके बोलेगा क्या लग रहा हूं मैं। यू नो ही अप्रिशिएट्स हिमसेल्फ सो मच, एंड एट दिस एज ऑल्सो ही लुक सो, आई मीन सो फिट एंड सो यंग। मतलब अपनी एज से तो यंग ही लगता है ना यार। Yes, yes.
Yeah, because he is in love with his own self. I mean, I was just पता नहीं कौन सी पिक्चर का के लिए वो प्रमोशन के लिए ये लोग कपिल शर्मा पे आए थे, एंड दैट लेडी वाज सेइंग, पता नहीं कौन सी हीरोइन थी, ही सेड हम लोग सुबह सुबह जैसे हम जाके वहां बैठते थे अपनी शूटिंग के लिए तैयारी वेरी कर रहे होते थे, तो अनिल कपूर जैसे ही आता था ना, मतलब ही वुड नॉट टॉक अबाउट एनीबॉडी एनीथिंग एल्स, ही वुड कम एंड आस्क क्या कैसा लग रहा हूं मैं, जच रहा हूं ना मैं, द फर्स्ट थिंग ही यूज्ड टू से दैट ओनली. So imagine karo, if you're beginning your day like this, you will feel happy and on top of the world throughout the day ना. एंड जब आप ऐसे मूड में अंदर से महसूस कर रहे हो मतलब फील कर रहे हो, तो आपको लाइफ में वैसी ही चीजें मिलेंगी जो आपको और ऐसा महसूस कराएंगी. पीपल विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट, you will dress up like that people will give you second looks, एंड आपकी कॉन्फिडेंस लेवल किसी और ही लेवल पे चला जाएगा. Yeah. So this is what happens when you start paying gratitude. So when you acknowledge people, that is equivalent to gratitude. So when you acknowledge your own self, you appreciate your own self, you're paying gratitude. हाँ जी पढ़े. Whoever has gratitude for themselves will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for themselves, even what he or she has will be taken from him or her. तो ये तो हमारा इस बुक का प्रिंसिपल है ना, ये पूरी बुक में उसने इसी के ऊपर काम किया है. वो यही कह रही है बुक कि जिस जिसके पास ग्रेटिट्यूड है जिस जिस चीज के लिए, हेल्थ के लिए है तो हेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ के लिए तो वेल्थ बढ़ेगी, रिलेशनशिप्स के लिए तो रिलेशनशिप अच्छे होंगे. और यहां पे वो बात करे कि व्हेन यू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर योर ओन सेल्फ, यू विल हैव अबंडेंस इन दैट, यू विल हैव गुड हेल्थ, यू विल हैव पीपल एडमायरिंग यू. जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमें प्यार करे, है ना, वी आर लुकिंग फॉर लव फ्रॉम अदर्स, वी वांट पीपल टू लव अस. बट यू नो व्हाट, whatever you give to your own self is what people will give you. People only give you what you give to your own self. अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, people will give you respect. If you love your own self, people will love you. मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप करेंगे. ये नहीं कहना पड़ेगा कि हाय कोई मुझे प्यार करे, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता. You don't have to say that. हाँ जी पढ़े. To do the magic mirror practice, go to a mirror right now. Look directly at the person in the mirror and out loud say the magic words, thank you, with all your heart. Mean Yeah. it more than you ever have before. Say thank you for being you. Say thank you for everything that you are. Say thank you with at least the same amount of feeling you have used for everything and everyone else. Be grateful for you just as you are. तो अभी ना, अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको यही दिखेगा, अच्छी नहीं लग रही, स्किन कितनी डल लग रही है, ये हो गया वो हो गया. यू डोंट हैव टू लुक एट ऑल दैट एट ऑल. यू डोंट हैव टू सी टू योर रिफ्लेक्शन, यू हैव टू सी इनटू योर ओन आईज. आंखों में देखना है, हो सकता है ना देख पाओ पहली बार, हो सकता है आंसू आ जाए. मतलब मुझे तो बहुत बार आते हैं आंसू कि मैंने क्या हाल कर लिया अपना. I just talked to myself and said, I'm so sorry, I've not been with you. I've not taken care of you. But you have always been there. But from now onwards, I'm going to be with you. I will never leave you alone. And I just want you to know that I love you. This is the conversation I've started doing with my own self. Because हम सब ने अपने आप को neglect किया है. But today is the time, this book is teaching us to acknowledge yourself. And अगर आपने कुछ भी अच्छा किया है अब तक की जिंदगी में, बहुत कुछ अच्छा किया है मुझे मालूम है, तो जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड जस्ट से थैंक यू फॉर बीइंग देयर. थैंक यू फॉर लाइक फॉर एग्जांपल, like I took care of my mother very well, so everybody appreciates that. So thank you so much for taking care of mom. Thank you so much
for managing all the relationships. Yeah. Thank you for keeping the house so well. So there are so many things to be thankful for. So just say thank you. और उतनी ही फीलिंग के साथ थैंक यू बोलो जैसे बाकी के 26 चैप्टर में किया है. और अब तक तो वो फीलिंग बढ़ गई होगी ना. अब तो हमें वो डेलिबरेटली करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि अब हमें आ गया है करना. है ना. हाँ जी. Continue with the magic mirror practice by being grateful to that beautiful person in the mirror for the rest of the day today and say the magic words thank you every time you look at yourself in mirror. If you are not in a position to say the magic words out loud at any particular time, then you can say them in your mind. तो And अभी if you आज क्या करना है, आज और कल क्या करना है आपने, आपको जहां पर भी मिरर देखे, मिरर हो, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जहां पे आपको अपना चेहरा दिख रहा है, या जैसे आप मोबाइल में भी है ना, हम लोग सेल्फी मोड लेते हैं या किसी किसी के मोबाइल के बैक कवर में होता है, तो जहां पर भी आपको मिरर दिखे आपने अपने आप को देखना है एंड अपने आप को बोलना थैंक यू. और अगर आप जोर से नहीं बोल पाओगे तो मन में बोल दो. है ना. हाँ जी. and if you are really brave, you can look in the magic mirror and say three things about yourself that you are grateful for. या तो तीन ऐसी चीजें जो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, जो आपने किया, जैसे मैंने बोला लुकिंग आफ्टर मॉम, मेंटेनिंग द रिलेशनशिप्स, कीपिंग द हाउस वेरी वेल, और जो जो भी आपके मन में आता है, ऐसी तीन चीजों के लिए अपने आप को आपने थैंक यू बोलना है. अब आई नो यू ऑल आर वेरी ब्रेव. जी. पढ़े. If for any reason in the future you are not being kind to yourself, you will know to give to the one person who deserves your gratitude more than anyone else, the person in the mirror. कभी कभी होता है ना, हम अपने आप को बहुत ज्यादा बैशिंग कर लेते हैं कि तूने ऐसे करा कैसे, मतलब होता है ना ऐसे. तो ऐसी कभी भी सिचुएशन आए ना, तो आपको एक ही काम करना है, गो टू द मिरर, लुक इन टू द आईज एंड से थैंक यू. और इफ यू हैव नॉट बीन गुड टू दैट पर्सन, से सॉरी एंड से थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर यू. हाँ जी. When you are grateful, you don't blame yourself when you make a mistake. When you are grateful, you don't criticize yourself when you are not perfect. When you are grateful for being you, you are happy and you will become a magnet to happy people, happy situations, and magical circumstances, which will surround you wherever you go and whatever you do. When you can see the magic in that person in the mirror, your whole world will change. तो अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है. तो जब भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, सो जस्ट से आई नो इट हैपेंड बट दैट्स ओके, वी ऑल आर ह्यूमन, कर सकते हैं गलती, बट आई हैव लर्न दिस फ्रॉम दिस ना, सो थैंक यू. सो wherever situation happens like this, you don't have to blame your own self, you just have to say that I understand this happened, it's okay. Don't bash yourself and just say it's okay. एंड फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम देयर एंड से थैंक यू. और जब आप ऐसे करना शुरू कर दोगे ना, जब आप ऐसे थैंक यू करना अपने आप को शुरू कर दोगे, एक्नॉलेज करना शुरू कर दोगे, अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. जैसे मैं बोल रही थी परी हूं मैं, तो आई फील हैप्पी. तो जब आप यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, you will attract happy surroundings, you will attract happy people in your life, and life will be full of happiness all around you. Only when you start saying thank you to the person in the mirror. करने वाले हो नहीं करने वाले हो. Yes. Yeah. So what is the practice? Magic practice number 27, the magic mirror. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. Yeah, of course, you know how to do it. I don't have to say anything on this. So let's move to the point number 2. Each time you look at yourself in a mirror today, say thank you and mean it more than you ever have before. Okay, so I can give you one more affirmation which I am using.
which Louis Hay has said works wonders. I've recently started using it, so you can also start using it. So when you say thank you can say I love you and I accept you. हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जैसे हम हैं, बिकॉज वी वॉन्ट आर सेल्स इन अ सर्टन वे, बिकॉज हम अपने आप को लोगों से कंपेयर करते हैं और हमको हम इम्परफेक्ट लगते हैं. बट आई रियली वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर परफेक्ट द वे यू आर. You are whole, complete, and perfect. So when you say thank you to your own reflection in the mirror, आंखों में आंखें डाल के जब आप थैंक यू बोल रहे हो, तो आगे से ये भी बोल दो, I love you and I accept you. So when you start saying this, you will start getting those feelings of love and acceptance. तो मैं ये क्यों कर रही हूँ कि मेरे को ना अभी जैसे मेरा बीच में बीपी बहुत हाई चल रहा था, सो मैंने अपने आप को पकड़ा कि मुझे आई एम फोकसिंग ओनली ऑन बीपी एंड आई एम फोकसिंग ऑन कि दिस शुड नॉट बी, ये होना नहीं चाहिए. और हम अपनी लाइफ में वही चीजें देख रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, कि ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, है ना, चेहरे पे मेरे रिंकल्स नहीं आने चाहिए, मेरी स्किन टाइट होनी चाहिए, डार्क सर्कल्स नहीं होने चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें नहीं चाहिए हम उसके बारे में सोच रहे हैं, because we are not accepting what we have right now. The moment we start accepting, things start changing. तो मेरे पैर में दर्द हो रही थी एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग यार ये पैर की दर्द क्यों शुरू हो गई है, एंड आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई पेन एंड आई इट जस्ट डिसअपियर्ड. I didn't take any medication, I didn't do anything. I just said I love myself and I accept myself, and I said I accept my pain, and it went, it just disappeared. So you can start practicing that when you say thank you, say I love you and I accept you. Usually we say I accept myself the way I am, but इतना लंबा बोलने की भी जरूरत नहीं है. I love you and I accept you is good enough. हाँ जी. Just before you go to sleep, sorry, if you are really brave, while looking in the mirror, say three things you are grateful for about yourself. हाँ, तो आप तीन चीजें कुछ भी बोल सकते हैं, वाह मेरी स्माइल कितनी बढ़िया है, माधुरी दीक्षित को मात करती है, मेरी आईज कितनी सुंदर हैं, है ना, लोग मेरी आंखें देख के गाना गाते, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है. यू कैन अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर एनीथिंग. कोई भी तीन चीजों के लिए आप अपने आप को थैंक यू बोलो. थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल आईज, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल स्माइल, थैंक यू फॉर माई लॉन्ग हेयर. मतलब जो भी आपको अपने बारे में कहना है आप कह के यू कैन से थ्री गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ एंड से थैंक यू. हाँ जी. या कमल, कमल आप म्यूट पे हैं. Just Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ जी. और लास्ट में ऑफ कोर्स आपको पता ही है, आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है. एंड यू नो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज वेरी ब्यूटिफुल एंड इसको ना करने में बहुत मजा आता है अगर आप करोगे इसको. एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू डू इट विद फुल अटेंशन एंड फुल फीलिंग. अब जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर फॉलिंग इन लव विद योरसेल्फ. एंड मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना, हम सिर्फ अपने आप को क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं. सो इट्स टाइम टू एक्नॉलेज योरसेल्फ एंड फील हैप्पी. एंड और इसके बाद ना एक ये प्रैक्टिस बना लो कि एवरी डे यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर थ्री थिंग्स. एक दिन की प्रैक्टिस मत करो ना इसको, इसकी रोज की प्रैक्टिस बना लो कि आपने रोज तीन चीजों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना है. थैंक यू बोलना एंड बोलना आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू. करोगे? Yes. Okay, good. So thank you very much for being in the session. Tomorrow is day 28 and day after we will be concluding the session, and hopefully we will
meet again and plan something else. Right? So thank you so much and good night, and I'll see you tomorrow. Thank you.